السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں کرن آفتاب۔ نون لیگ کا ورکرز کنونشن اور مریم نواز اس سے خطاب کر رہی ہیں۔ یاد ہے نا جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا۔ آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا۔ تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو، اپنے دن گنو اور یہ سوچو کہ عوام کے جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں۔ سنیں 6 روپے، تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے۔ جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لمبے، لیکن بجلی بڑھنے سے، بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو بات سنو، مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا، یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا دوسرے الیکشن میں۔ کیا اور کہتا ہے، سنو اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا۔ عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا، آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں، جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر، آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں۔ تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، شیرو آپ کا ہے، نواز شریف کا ہے۔ اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے، بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات، میں نے سنا تھا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، ایک منٹ، بڑی ضروری بات ہے، میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے، پنجاب نہیں کھڑا ہوتا۔ تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا۔ بولو پنجابیوں، اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو، جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو، یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا، ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ
अपने इस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला घर भेजना है। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मरियम नवाज यूथ विंग PMLN का उससे खिताब कर रही थी, कह रही थी आवाम को कैसे इमरान खान सड़कों पर लाएंगे, क्या कहकर लाएंगे, महंगाई इस कदर है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि दीगर सूबे शिकायत करते थे कि सिलेक्शन के खिलाफ पंजाब खड़ा नहीं होता, लेकिन अब तो पंजाब खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि PDM मुत्तहिद है, मिलकर आगे बढ़ेंगी। पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि 9 जमातों की राय का एहतराम करे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले का इंतजार है, उनकी तजावीज़ पर मजीद गौर करने के लिए भी तैयार हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज से जाती उम्रा में मुलाकात के बाद नैब पर भी वार किया। कहा 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब में पेशी है, PDM के हजारों लाखों कारकुनान साथ होंगे। PDM मुत्तहिद भी है, हमने मिलकर सफ़र करना है। PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी के CAC के फैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मजीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे। उनकी कोई शिकायत हो या उनकी कोई राय हो तो उस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, ताकि PDM सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे। 26 मार्च को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के हजारों से नहीं लाखों तक कारकुन उसमें आएंगे। PDM की क़यादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे। मौलाना ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो रहा ही नहीं। लॉन्ग मार्च करने वाले पहले अपनी करप्शन का हिसाब दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद को जवाब, कहते हैं दौलत और जायदाद की रसीदें दें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्ली बार्गेन कर लें। ये जो PDM है, जिसका कि अभी वो खाक के ढेर में शोला है न चिंगारी है, वो तो अब एक माजी का किस्सा बन चुके हैं और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं नहीं करते। आप बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें। वो भी अगर नहीं है और आप अपनी जो दौलत है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं, तो फिर एक कानून में तरीका है, उसको आप वो कर लें, आप प्ली बार्गेन कर लें, आपके वो भी बच जाएंगे और आपका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। PDM की ये मुलाकातें, ऐसे मिलना जुलना, इस सब के बावजूद भी सवाल सारे के सारे वहीं के वहीं मौजूद हैं। बात यह है कि क्या मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी में दूरियां अब और भी बढ़ गई हैं? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। अब क्या पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और जलसे किए जा सकते हैं? जब ये सवाल किया गया मौलाना से, तो ऐसे में जवाब दिया मरियम नवाज ने। साफ साफ कह दिया कि कोई साथ हो या ना हो, इस सब से तहरीक पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब JUI हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तो खुद भी बड़े जलसे कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अब ऐसे में किसी और की ज़रूरत नहीं, किसी और से मुराद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब प्रेस की तरफ से ये सवाल किया गया, सहाफ़ियों की तरफ से ये सवाल किया गया कि वो ट्वीट किसके बारे में था, आखिर नया सेलेक्टेड किसको कहा था, ये ताना किसे दिया था, तब भी बात इशारों किनायों में होती रही। बिलावल और बिलावल मैं और बिलावल। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है। मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जो PP की तारीफ और बिलावल को भाई कहती नहीं थकती थी, उनकी जुबां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का नाम आया, न PP का साथ याद आया। मुस्लिम लीग नून और JUIF को और PDM को इन्हीं
जो तवक्कुआत हैं अपोजिशन की से आवाम की, उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए और मिल के करनी चाहिए। बल्कि फजलुर रहमान ने पीपी को बड़ी जमात कहा तो पहले मरियम की माने खेज मुस्कुराहट आई, फिर जवाब ऐसा कि मुखालिफत खुल कर सामने आई। पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं तो क्या नून लीग पीपी के बगैर अवाम इकट्ठा कर लेगी? बिल्कुल कर सकती है। लॉन्ग मार्च भी कर लेगी? बिल्कुल कर सकती है। ये तो इख्तिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। तो ये भी बता दें, आपने ट्वीट में सिलेक्टेड का ताना क्या बिलावल को दिया था? ये सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। दबे लफ्जों में कर दिए हालात बयां। फजलुर रहमान को है अब भी आस, मगर लगता है अब रूठ गई है मरियम नवाज। तो लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का जिम्मेदार कौन? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं आसिफ अली जरदारी की सरबराही में बंद कमरा इजलास के दौरान जिस शख्स ने उनकी तकरीर मीडिया के साथ शेयर की वही लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का जिम्मेदार है। लेकिन लॉन्ग मार्च होगा ईद के बाद, हुकूमती तर्जुमानों की अटकेलियां खत्म होने वाली हैं। जिम्मेदार वो है जिसने जरदारी साहब की एक क्लोज डोर मीटिंग, सरबराही मीटिंग में जिसने उनकी तकरीर मीडिया के साथ शेयर की और वहाँ पे जो है वो रेड स्टिकर चलना शुरू हो गया, वो बंदा जो है वो जिम्मेदार, जिसने उस दिन ये काम किया। उसने न सिर्फ PDM को बल्कि पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुँचाया। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला, इनका इलाज ही लॉन्ग मार्च है और वहाँ पे जाके बैठना है इनके सर के ऊपर। ईद के बाद जो है ये जो इनकी अपना तर्जमान और गाली गलोच ब्रिगेड जो अटकेलियाँ ले रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला इनकी ये अटकेलियाँ जो है ये ख़त्म होने वाली हैं। सिंध हुकूमत की असल दास्तानें सुने। 40 अरब की गंदुम को चूहे खा गए, ये कहना है मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का। कहती हैं ऐसे ताकतवर चूहे हैं जो सिंध के अंदर उछलते कूदते फिर रहे हैं। 40 अरब के डकार मार गए और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। पीपल्स पार्टी ने यारी लगाई थी, वो टूट गई है धड़क करके। आज आप सिंध हुकूमत की असल दास्तान सुने। 40 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए हों। वो चूहे जो है उनको ब्रांड कर दें कि उन चूहों के टाइटल किसी कैबिनेट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स के साथ मिलता जुलता है, या वो कौन से ऐसे ताकतवर चूहे हैं जो सिंध के अंदर उछलते कूदते फिर रहे हैं और 40 अरब के डकार मार गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जरदारी साहब और उनके दरबारी और फिर नून लीग के हवारी बगलें बजाते बजाते इन्होंने खुद अपने खिलाफ बगल बजा दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान के खिलाफ लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम एक्ट की दिफात इसमें शामिल की गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जावेद लतीफ़ को कौम से माफ़ी मांगने का मशवरा दिया, लेकिन जावेद लतीफ़ कहते हैं वो मुकदमे का सामना करेंगे। तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया, कहा हुकूमत इस मुकदमे में मुद्दई बने। ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं? अगर होगा तो कब होगा? तारीख तो बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल फजलुर रहमान का पीछा करते रहे। सहाफ़ियों ने मौलाना की मुस्कुराहट पर भी सवालिया तबसरा किया। PDM रहनुमाओं की बैठक के बाद फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए। मरियम नवाज ने भी डायरेक्शन दी। आप लोग पीछे हो खैर। परवेज रशीद राना सना को भी सदा लगाई। परवेज अंकल किधर? राना साहब आ जाओ, राना साहब आ जाओ। फजलुर रहमान के अच्छे मूड पर सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही फजलुर रहमान को मुखातिब करके दिलचस्प तबसरा किया।
और सर ये ना मुझे टॉक करके अब चले जाए, फिर हम सवाल नहीं कर सकते। लॉन्ग मार्च कब होगा, ये सवाल बार बार मौलाना का पीछा करता रहा, मगर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब न दिया। ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है क्या लॉन्ग मार्च अगर है तो अब कब है, या मुल्तवी उसको भी फिर हमने अपने सरबराही इजलास ही में नई तारीख दे। फजलुर रहमान जाने लगे तो फिर वही सवाल, मगर इस बार भी जवाब अधूरा ही आया। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? इंशाल्लाह होगा। तारीख है मुनासिब लॉन्ग मार्च की। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है मुल्क दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की महरूमी से फ़ायदा उठा रहे हैं। हुक्मरान सोचें, दुश्मन कुलभूषण को बलोचिस्तान और कराची क्यों भेजते हैं। हमने बातचीत और सियासी जद्दोजहद से कराची को रौ से आज़ाद करवाया। मुतालबा किया कि बलोचिस्तान के नाराज़ नौजवानों को सीने से लगाया जाए। और अब कुछ बात कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की, जिसके लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है और साथ ही इल्ज़ामात का सिलसिला भी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। हल्का NA 249 के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। अब तक 10 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी, 2 के कागजात मुस्तरद। नून लीग की मिफ्ता इस्माइल कागजात की मंजूरी के बाद जीत के लिए पुरअज़्म नजर आए। मुझसे उन्होंने पूछा रिटर्निंग ऑफिसर ने कि क्या मेरी कोई फॉरेन शहरियत थी, मैंने कहा नहीं। बोला कभी पहले थी, मैंने कहा ना पहले थी, ना अब है, ना आइंदा होगी। PTI उम्मीदवार हसनैन अली चौहान एडवोकेट ने मिफ्ता इस्माइल पर एतराज कर दिया। कहते हैं उन्होंने हकायक छुपाए और रिटर्निंग अफसर हमारी नहीं सुन रहे। इस्माइल साहब जो कि नून लीग के कैंडिडेट थे, उनके नॉमिनेशन के ऊपर हमने एतराज़ दाखिल करने के लिए आरओ साहब के पास आए। जिस तरीके से हम पहुंचे तो आरओ साहब का एक रवैया जो है वो एक इस तरीके से था कि वो चाह ही नहीं रहे थे कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो कि उनके नॉमिनेशन के ऊपर आ जाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हामी नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हुर्रों के रूहानी पेशवा सूर्य बादशाह की बरसी का मौका, मुस्लिम लीग फंक्शनल जलसा करने जा रही है। इसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद आलम, जलसागाह, आसपास का इलाका, इन दोनों के ऊपर अपडेट करें। जलसा है और काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है। मुंतज़मीन का ये दावा है कि 1 लाख से ज़ायद अफराद उनके जलसे में शरीक होंगे। मुख्तलिफ इलाक़ों से, मुख्तलिफ जगहों से हुर्रों की तादाद भी यहाँ पर पहुँच रही है। कारकुन आना शुरू हो चुके हैं। जलसा अब बाकायदा मगरिब की नमाज के बाद शुरू किया जाएगा और लियाकताबाद का जो निचला हिस्सा है ट्रैफिक का, अलकरम स्क्वायर और आज़म स्क्वायर का, वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, क्योंकि हर दफ़ा ये होता है कि जब लियाकताबाद में जलसा होता है तो दोपहर के बाद ट्रैफिक बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। यही सूरत हाल है। मुंतज़मीन का कहना है कि बार बार ट्रैफिक जो है उसको खुलवाया जाए ताकि जलसा गाह की तरफ आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। काफ़ी बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। 40 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं और रात में जलसा शुरू होकर के कब ख़त्म होता है इस बारे में हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन लियाकताबाद के जलसे पर जो पहली मरतबा फंक्शन लीग यहाँ करने जा रही है उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी नजरें मरकूज हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करंतना में अपनी तस्वीर जारी कर दी। कहा, मेरे लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म ने खुद को बनी गाला में करंतना कर लिया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमरान खान कुर्सी पर बैठे हैं और खिड़की से बाहर की जानिब देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की तबीयत बेहतर है और वो हुकूमती उमूर घर से अंजाम देंगे। इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए सोशल मीडिया सारिफीन भी खास से फिक्रमंद। गेट वेल सून, स्किपर और जियो हज़ारों साल टॉप ट्रेंड है। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी के लिए दुआया पैगामात शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन के वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात। गेट वेल सून स्किपर और जियो हज़ारों साल टॉप ट्रेंड में शामिल। सारिफीन वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। किसी ने इमरान खान की सेहतयाबी के लिए आयत करीमा का विर्द करने की अपील की तो किसी ने वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की तस्वीर शेयर करके पैगामात लिखे।
کھلاڑی ہوں یا شوبز ستارے، وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، مولانا طارق جمیل اور کئی غیر ملکی سفیروں نے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا رہا۔ NCOC سربراہ اسد عمر نے سما سے گفتگو میں ایسی تمام باتوں کی نفی کر دی۔ ایک چیز تو وہ کوئی پھیل رہی ہے سوشل میڈیا میں، مجھ سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ سارا پاکستان لاک ڈاؤن کر دیں گے منڈے کو۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ ہم لوگوں نے کچھ آپس میں سوچا ہے کہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے عمل درآمد زمین پہ کرانا ہوتا ہے صوبوں نے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی مشاورت شامل ہو۔ تو منڈے کو پھر ہم فیصلے کریں گے کہ کیا اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بندش لگانے کی یا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی جو گائیڈنگ پرنسپل ہے، جو اصول ہے، بنیادی اصول جس کی بنا پر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس کو کم سے کم اثر انداز کیا جائے، لیکن